everyone. Good evening. How are you? Hope you have listened to wonderful music and now you are rejoice yourself. And one of my friend told me, see, every day starts with new stories, and the stories enjoy every moment of your life, and the thing start any new thing with a great pleasure or great thoughts and great music, because music can refresh in your mind. You can relieve from your stress and everything. So now can we start today's session? Everyone, एक आपका होने का सबूत दीजिए कि आप है और अलाइव है. So write in chat, start the session, SS. Okay, wonderful. So now I'm going to start with the session, and is my screen visible to you? Can everyone of all of you can see my screen? Yes, sir. First, we'll start with how to get education loan to study abroad. So ये एक एजुकेशन लोन हम लोग कैसे ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, तो उसके रिगार्ड का ये वेबिनार हम लोगों ने आज अरेंज किया है. और नेविगेटर्स एजुकेशन और HDFC क्रेडिला, ये दोनों ने साथ में कोलैबोरेट होके ये वेबिनार अरेंज किया हुआ है. So first, before we start the session, we have some rules. And first is you should not leave the webinar in between, because at the end always there is some new surprise. So it is there. One more thing, you can have pen papers with you so you can note down the points. And one more thing, I am going to give you some links in chat box. That is our Instagram and Telegram links. So you can follow our Instagram and Telegram as well. You can join our Telegram link right now. So यहाँ पे चैट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, 2 लिंक्स आपको मिली होगी. एक इंस्टाग्राम का है, so you can follow it right now. So within 30 seconds, go to your Instagram, follow our page and come back and click the Telegram channel link if you are using Telegram. So you can join it right now. So आपको in future हर एक हमारा जो updates है वो आपको मिलते रहेंगे. So we are just waiting for 30 seconds, and follow us on Instagram and we'll be grateful to you. So easily we can update you everything about our institute. Regularly we are arranging this kind of informative webinars, and these things are ultimately not for sale. ये एक knowledge sharing platform है हमारे लिए. So we are sharing it with you. So go and follow us on Instagram. So we'll wait for 30 seconds. Okay, now let's move to the session. And the actual name is how to get education loan to study abroad. Study abroad के लिए education loan कैसे लिया जाता है और क्यों लेना चाहिए, वो भी आज अमित भाई आपको सब पूरा डिस्क्राइब करेंगे. So with this webinar for, जो ultimately always एक intention रहता है कि क्यों हर किसी को ये वेबिनार अटेंड करना चाहिए. Everyone, is it everyone for everyone? So actually it is for students who are planning to study abroad and want to get education loan. जिन लोगों को अब्रोड स्टडी के लिए जाना है और एजुकेशन लोन उनको चाहिए, सो वो लोग ये अटेंड कर सकते हैं. पीपल प्लानिंग टू स्टडी अब्रोड एंड वरीड अबाउट फंड्स होते हैं या तो कुछ कम होता है. सो कि जिस किसी को फंड्स चाहिए होता है,
सो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो लोग भी ये वेबिनार अटेंड कर सकते हैं. And candidates who don't want to mortgage their property, without mortgage your property, you can get the education loan. And वो कैसे लिया जा सकता है, so everything you will reveal in sometimes. So ये चीजें आप सबके लिए है. और disclaimer, so we don't guarantee for confirmation of sanction of the loan. Loan sanction is based on the rules and regulation of the financial institution, and that is HDFC Credila as of moment, and eligibility of the applicant. So ये सब मिला के ये एक डिस्क्लेमर है कि गारंटी नहीं है, मगर ये रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करते हैं और एलिजिबिलिटी होती है तो आपको लैंड सैंक्शन हो सकता है. Now about me, about the host, you are having 2 hosts today, and one out of them is me, that is Chirag Joshi, and I am the founder of Navigators Education, and I am certified visa consultant with more than 15 years of experience, and I have helped more than thousands of students to go abroad, help 1,000 plus students to achieve their score in IELTS and PT, and we have found Navigators Education, that is our institute, and is professionally managed organization from 15 years, and that offers services like IELTS, PT training, and visa consulting for all major countries like Australia, Canada, UK, US, New Zealand, Europe, and Singapore. And we are also an official representative of HDFC Credila. And now I am going to introduce you Mr. Amit Dipani, who is the sales manager of HDFC Credila for Gandhinagar and Ahmedabad. And I would like to request you all that please let us warm welcome Mr. Amit Dipani. And to welcome in chat box, write down WC and flow the chat box. So let us warm welcome Mr. Amit Dipani. Now the next session, now remaining session will conducted by Mr. Amit Dipani. So Amit bhai, carry on with your and you are very much we are welcoming you on board, and now please carry on for the session. Thank you, Chirag bhai. Thank you so much. And good evening, everyone. Hello. Your voice is bit slow. Just a moment. Hello. Now it's fine, Chirag bhai? Yeah, it is fine. Fine, na? Yes, please carry on. Hello. Hello. Yeah, it is audible. Okay. Yeah, fine. So good evening, everyone. Good evening, Chirag bhai. First of all, I would like to thank you, Chirag bhai, to giving us opportunity. Just a moment. Hello. Yes, we can listen your voice. Okay, fine. Now it's clear, na? Yeah. Okay. So first of all, I would like to thank Chirag bhai, and thank you everybody. Actually, so Chirag bhai has already cleared about the HDFC Credila, right? So I would like to introduce. Just a moment. I will.
Can everybody see my screen? Chirag bhai? Yes, we can. Okay. Yes, sir. Okay. So basically, I would like to introduce about HDFC Credila. So HDFC Credila is one of the 100% subsidiary company of HDFC Limited, right? So first of all, HDFC Credila was founded by Bohra brother in 2006, and then after HDFC Limited has taken over the part in HDFC Credila, right? So HDFC Credila is now 100% subsidiary of HDFC Limited. Okay, and we have incorporated in 2006, right? Registered as a non-banking finance company. And HDFC Credila, one of the first in dedicated education loan company. आप सबको शायद याद होगा कि पहले मोस्ट केसेस में कैसा था कि पहले गवर्नमेंट बैंक्स के ऑप्शंस थे, राइट? सो पहले लोग क्या करते थे कि लोगों के पास गवर्नमेंट बैंक्स के अलावा कोई प्राइवेट में ऑप्शंस नहीं थे, तो जाना पड़ता था, आपको खुद बैंक के पास जाना पड़ता है, राइट? बट नाउअडेज सिनेरियो इज दिस कि हम लोग आपके पास आएंगे कि वी आर प्रोवाइडिंग डेडिकेटेड सर्विस एंड डोर स्टेप सर्विस, राइट? सो HDFC क्रेडिला ने, जब क्रेडिला फाउंडेड हुआ था, तब ये सिनेरियो पे उन्होंने रिसर्च किया कि स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को क्या दिक्कतें आ रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन लोन प्रोसेस इन ऑल, राइट? सो गवर्नमेंट बैंक्स को टिपिकल मेंटालिटी ये होता है कि आपको एक तो पहले टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, राइट? वहां पर टाइम 4 बजे के बाद वो लोग आंसर नहीं देते हैं, ठीक है? और उसके बाद वहां पर प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं मिलता और 10-15 दिन 20 दिन 2-2 महीने वो लोग प्रोसेस में निकाल देते हैं। तो ये सब में रिसर्च करके HDFC क्रेडिला ने फाउंड किया और प्रोडक्ट बनाया, और हमारा प्रोडक्ट है वो भी फ्लेक्सिबल है, राइट? सो HDFC क्रेडिला इज ऑलरेडी फंडेड इंडियन स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड 35 plus countries and 2100 plus institute and more than 1000 plus courses we have already funded, right? And as of now, HDFC Credila has disbursed more than 10,000 plus crore in terms of volume. And HDFC Credila is one of the India's only NBFC which covers under the tax benefit. बाकी सब NBFCs में कैसा है, बहुत सारे कंपटीशन है NBFCs में, राइट? बट वी आर द ओनली NBFC टू गिव द टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80E। शायद आप लोगों को पता होगा कि ये एजुकेशन लोन में टैक्स बेनिफिट मिलता है 80E में, राइट? कि जो कि इंटरेस्ट पार्ट आप टोटली क्लेम कर सकते हो विदाउट एनी कैपिंग, कोई कैपिंग नहीं है उसमें। लेट से 1.5 लाख 2 लाख जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, ये पूरा आपको अंडर सेक्शन 80E में रिबेट मिलेगा, राइट? सो पहले तो मैं ये चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि लोगों को एजुकेशन लोन के बारे में थोड़ा मिथ्स होता है कि यार काफी सिनेरियो में ऐसा होता है कि लोगों के पास लाइक फंड पड़ा रहता है, ठीक है? तो वो लोग शॉर्टकट सोचते हैं कि यार मेरे पास तो पैसे है, तो मैं एजुकेशन नहीं लूंगा तो चलेगा, राइट? सो एजुकेशन लोन के जो मिथ्स है वो अभी मैं आपको ये क्लियर करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के माइंड में कि एजुकेशन लोन हमें मिल सकता है, कैसे मिलेगा, क्या है, कैसे प्रोसेस होगी। कोई लोग सोचते हैं कि यार लेंथी प्रोसेस है, रहने दीजिए, नहीं करना है, चलो अभी अपना फंड है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, तो इधर उधर से फैमिली से मैनेज करते हैं, बरोबर? तो ऐसे करके लोगों को एक्चुअली जो एजुकेशन लोन के बेनिफिट्स है कि क्या बेनिफिट्स है, एजुकेशन लोन क्यों लेना चाहिए, राइट? सो वो मैं थोड़ा आपको क्लियर करूंगा कि आपको एजुकेशन लोन कैसे बेनिफिट में रहेगा और आपको कैसे लेना चाहिए, ठीक है? सो लोगों को एक तो एक क्वेश्चन कॉमन ये रहता है कि यार सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, मेरी प्रॉपर्टी, एक्चुअली मेरे पास प्रॉपर्टी अभी सिक्योर्ड में देने के लिए नहीं है, तो मुझे एजुकेशन लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, राइट? तो ये सबसे पहला पॉइंट आता है कि सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, राइट? कि सिक्योर्ड में मुझे कितना मिलेगा, अनसिक्योर्ड में मुझे कितना मिलेगा,
प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई ऐसा सोचता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी तो मेरे दादा के नाम पे है, तो मेरे दादा के नाम पे है, तो मैं कैसे लोन अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, राइट? सो ये मिथ है कि एजुकेशन लोन के बारे में, कि लोग सोचते हैं कि यार रहने दो, ये सब में आपने नहीं करना है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन दोनों को। वी आर प्रोवाइडिंग बोथ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, राइट? एंड दूसरा जो मिथ होता है कि एक्सपेंसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस कवर्ड, बरोबर? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एजुकेशन लोन में सिर्फ ट्यूशन फी कवर करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि लिविंग एक्सपेंस एजुकेशन लोन के अंडर में कवर होता है कि नहीं होता है, राइट? तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि एक्सपेंसेस कौन कौन से कवर करता है एजुकेशन लोन, राइट? लेट्स से गवर्नमेंट बैंक में मोस्टली वो लोग ट्यूशन फी के एक्सपेंस कवर करते हैं, लिविंग एक्सपेंस इट्स अ लिमिटेड एक्सपेंस ओनली, राइट? एंड लैपटॉप के वो भी एक्सपेंस आई थिंक मोस्ट केसेस में वो लोग कवर नहीं करते हैं, राइट? तो ये भी एक क्वेश्चन होता है लोगों के दिमाग में कि एक्सपेंसेस कौन कौन से कवर होते हैं एजुकेशन लोन में, राइट? तो वो भी मैं आपको एक क्लियर करूंगा कि आप एजुकेशन लोन में क्या क्या एक्सपेंस कवर कर सकते हैं और हम HDFC क्रेडिला में कैसे आपको हेल्प करेंगे, राइट? एंड दूसरा सबसे जो ये मेन पॉइंट है, टाइमिंग, व्हेन कैन यू अप्लाई फॉर द एजुकेशन लोन, राइट? कि आपको कौन से टाइम पे एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ अभी आई कैम अक्रॉस मेनी सिनारियो कि लोग ऐसा सोचते हैं कि यार एजुकेशन लोन को एडमिशन के बिना अप्लाई नहीं होगा, राइट? क्योंकि लोगों को एक्चुअली जो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट है उनको इस बारे में एजुकेटेड नहीं है कि आप एजुकेशन लोन प्री अप्रूव्ड भी करा सकते हैं वेल बिफोर एडमिशन। क्योंकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कनाडा, राइट? तो कनाडा में कैसा होता है कि कनाडा में ऑफर लेटर आने के बाद जो फीस की डेडलाइन होती है वो समवेयर अराउंड 1 महीना हार्डली देते हैं, 1 मंथ, राइट? हेलो, कोई आई थिंक ओके, नाउ फाइन, ओके। सो एक टाइमिंग का एक मेन क्वेश्चन होता है कि मुझे कौन से टाइम पे एजुकेशन लोन अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये आपको मैं थोड़ा बताता हूँ कि कनाडा के लिए जब हम एजुकेशन लोन अप्लाई करते हैं, राइट, तो एडमिशन के बाद करेंगे, यदि इन केस कोई क्वेश्चन आया कि कंपनी कंफर्टेबल नहीं है, कुछ होल्ड पे आया, कुछ भी पैरामीटर्स हो सकता है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट को वहां पर डेडलाइन मिस करनी पड़ती है, या तो वो शॉर्टकट अपनाने पड़ते हैं कि लाइक मुझे अभी दूसरा सब ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, लाइक आई वुड प्रीफर टू टेक पर्सनल लोन, होम लोन जो मेरे पास घर पे चल रही है उस पर मैं थोड़ा टॉपअप करवा रहा हूँ, राइट? तो ये लोगों को जनरली एक मिथ है कि एजुकेशन लोन आफ्टर एडमिट ही हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये गलत चीज है। हियर यू कैन अप्लाई वेल बिफोर योर एडमिशन, राइट? यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विथ आवर वेबसाइट ओनली। आवर वेबसाइट, यहाँ पर एक क्लियरली हमने एक पॉइंट मेंशन किया है HDFC क्रेडिला के वेबसाइट पे कि प्री अप्रूव्ड एजुकेशन लोन बिफोर एडमिशन। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका बेनिफिट स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को कैसे रहेगा। सिंपल सा बेनिफिट्स है कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ने पहले से अप्लाई कर दिया, यदि कुछ होल्ड पे आया या तो कहीं पे कुछ इधर उधर हुआ, थोड़ा प्लस माइनस हुआ, राइट, तो वहां पर उनकी डेडलाइन से पहले हम लोग कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बरोबर? मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, राइट, एजुकेशन लोन की, तो वहां पर भी आप सब एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन है कि टाइमिंग, जो टाइमिंग हो ना एजुकेशन लोन का, आपको अप्लाई पहले से करना चाहिए, राइट? देयर आर सर्टेन बैंक्स कि वो एडमिशन से पहले नहीं लेगी, राइट, बट मार्केट में ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे आपको कि जो प्री अप्रूव्ड एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करेंगे, राइट? HDFC क्रेडिला इज वन ऑफ द लेंडर हु इज प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी, राइट? एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, जनरली एक मिथ होता है कि लोन टेन्योर, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर पॉसिबल फॉर एजुकेशन लोन, राइट? सो अलग अलग बैंक्स अलग अलग सबका कैलकुलेशंस है, राइट? सो इन आवर केसेस वी आर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम 14 years टेन्योर,
right? In some other competition or other government banks, they are providing 10 years, maximum 10 years, I think 10 to 12 years, right? तो ये भी एक मीथ्स होती है कि कितने टेन्योर पे, क्योंकि जितना आपका मैक्सिमम टेन्योर होगा उतना आपके पर बर्डन अभी कम आएगा, राइट? क्योंकि आप जब भी कोई स्टूडेंट पहले जॉब के लिए जाता है, राइट, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब ज्वाइन करता है, तो तुरंत उनको लाइक रॉकेट पैकेज से कुछ स्टार्ट नहीं होता है, लाइक, तो उसमें उनको एक्चुअली इनिशियल लेवल होता है उनका, तो डायरेक्टली ईएमआई ज्यादा हो तो वो स्टूडेंट को भी थोड़ा बर्डन लगता है कि यार कैसे मैं मैनेज करूं इतना ईएमआई, राइट? तो टेन्योर जितना आपका मैक्सिमम साइड रहेगा उतना आपको ईएमआई का जो बर्डन है उतना कम आएगा. सो एचडीएफसी क्रेडिला इज प्रोवाइडिंग 14 years tenure, maximum tenure you can opt for the 14 years, right? दूसरा एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है रीपेमेंट. आर देयर एनी चार्जेस इन्वॉल्व? बरोबर, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है. बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट को, कि एक बार एजुकेशन लोन ऑप्ट करने के बाद जो रीपेमेंट है, रीपेमेंट कैसे स्टार्ट होता है, और उनको एक क्वेश्चन होता है यार मेरे पास पैसे आ गए, बरोबर. कोई कोई लोग ऐसे भी एजुकेशन लोन लेते हैं कि यार थोड़े टाइम के बाद उनके पास कुछ पैसे आने वाले हैं, बरोबर. तो वो उसके बेसिस पे उनको एक क्वेश्चन होता है कि ये मैं रीपेमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स में, दूसरी सब कॉम्पिटिशन बैंक्स वगैरह में ऐसा है कि आप प्री पे आप 2.5 साल तक 3 साल तक नहीं कर सकते, जब तक आपका जो भी मोरेटोरियम पीरियड रहेगा, आपका एजुकेशन प्लस 1 साल का ग्रेस पीरियड. गवर्नमेंट बैंक्स में ये 6 months का है, बरोबर. वी आर प्रोवाइडिंग 1 year ग्रेस पीरियड के स्टूडेंट है वहां से सेटल हो जाए, वेल सेटल हो जाए अच्छे से, जॉब के बाद वो लोग दे कैन स्टार्टेड पेइंग ईएमआई, राइट. सो रीपेमेंट में कौन से चार्जेस रहेंगे वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है कि रीपेमेंट अलाउड है, कितना चार्जेस लगेगा. तो इन एचडीएफसी क्रेडिला हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वी आर नॉट चार्जिंग सिंगल पेनी रुपीज फॉर द रीपेमेंट, राइट. आफ्टर 6 months यू कैन पे एनी अमाउंट, ठीक है. 6 महीने के बाद आपके पास कुछ फंड्स अरेंज हुआ कि कुछ केसेस में स्टूडेंट वहां पर जाते हैं तो वो साइड बाय साइड अपना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक जॉब वगैरह पार्ट टाइम, तो दे आर स्टार्टिंग मेकिंग मनी, राइट. सो वो लोग अपने पेरेंट्स को भेजना चालू कर देते हैं अपने रीपेमेंट के लिए, तो वो पेरेंट्स डायरेक्टली यहाँ पर रीपेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी. बाकी सब जगह पर पेनल्टी लगती है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आई थिंक 2% तक वो लोग पेनल्टी चार्ज करते हैं, वट एवर अमाउंट यू आर पेइंग इन रीपेमेंट, राइट. सो इन एचडीएफसी क्रेडिला ये रीपेमेंट यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी. वी आर नॉट चार्जिंग एनी पेनल्टी ऑन द अर्ली रीपेमेंट, राइट. एंड द सेकंड पैरामीटर इज नो मार्जिन मनी. व्हाट इज द मार्जिन मनी, राइट. सो ये एक मोस्टली कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट एंड पेरेंट्स के माइंड में जब वो लोन के लिए एक्सप्लोर करते हैं कि मुझे कितना एजुकेशन लोन मिल सकता है और मुझे पेमेंट उसका कैसे होगा. तो लाइक गवर्नमेंट बैंक्स में कैसा होता है कि गवर्नमेंट बैंक्स में मोस्टली बैंक्स आर चार्जिंग मार्जिन मनी, राइट. सो 20 to 30% वो लोग चार्ज करते हैं, 15 to 20% दे आर चार्जिंग एज अ मार्जिन मनी. मैं आपका इसको एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट. कि इफ यू आर टेकिंग 10 लाख ऑफ लोन्स, राइट, तो 10 lakhs में से आपको 2 लाख या 3 लाख जो भी वट एवर अमाउंट पहले आपको आपके पॉकेट से देना पड़ेगा, राइट. एंड बैंक देन जो रिमेनिंग अमाउंट है 8 लाख रुपीज वो आपको एजुकेशन के लिए फंड करेंगी. तो इसका मतलब यहाँ पर मोटा मोटा आपका खुद का पैसा जो कि आपका सेविंग्स है, हार्ड एंड सेविंग्स, वो आपका पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको दूसरा बैंक रिलीज करेगी फर्दर एजुकेशन के लिए, राइट. तो एचडीएफसी क्रेडिला में हम लोग कोई मार्जिन मनी कंसेप्ट है ही नहीं. वी आर नॉट चार्जिंग एनी मार्जिन मनी, राइट. वी आर प्रोवाइडिंग टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर एक पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा था कि जो एक्सपेंसेस कौन कौन से कवर कर सकते हैं. तो वी आर कवरिंग टोटल एक्सपेंसेस,
in terms of relevant to your education, right? It's must be like educations related expenses like tuition fee obviously cover होगी, लिविंग एक्सपेंस के वहां पर स्टूडेंट का जो भी लिविंग फूड एक्सपेंस है वो ऑब्वियसली कवर होगा, राइट? बुक, स्टेशनरी, लैपटॉप के वहां पर स्टूडेंट को एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा इंकर करेंगे तो वो लोग यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, राइट? सो हम लोग इसमें मार्जिन मनी नहीं चार्ज करेंगे, राइट? टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि लोग टालते हैं एजुकेशन लोन लेना कि इसमें मार्जिन मनी देना पड़ेगा तो फिर एजुकेशन लोन का फायदा ही क्यों? ये एक्चुअली सही सोच है कि खुद का पैसा नहीं करने के लिए लोग एजुकेशन लोन प्रीफर करते हैं कि मुझे अभी मेरी जो मनी है, मेरी जो कैपिटल है, पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरी कैपिटल मेरे पास एज इट इज सही रहनी चाहिए क्योंकि जो कैपिटल है उसमें उनको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? वो उनकी हार्ड अर्न मनी है, ठीक है? तो हमारे केस में एचडीएफसी क्रेडिला में वो आपकी जो भी हार्ड अर्न सेविंग्स है जो आपके रिटायरमेंट्स के लिए आपके पेरेंट्स ने प्लान की है तो वो यहाँ पर उनको तोड़नी नहीं पड़ेगी, राइट? वी आर प्रोवाइडिंग 100% एजुकेशन लोन्स, राइट? इन जो अभी जो ये पैरामीटर्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है प्रोसेसिंग टाइम। मोस्टली लोग टालते हैं एजुकेशन लोन लेना कि यार प्रोसेसिंग में ही 2 महीना निकल जाता है, ये सब में कौन करे, राइट? मोस्टली स्मूथ प्रोसेस नहीं होती है। गवर्नमेंट बैंक्स में तो आप लोग जानते ही हो कि वो लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं कि 4 बजा नहीं और शटर क्लोज, वो लोग आंसर नहीं देते हैं, राइट? तो पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, दोनों को दिक्कत होती है कि यार ये सब में टाइम कितना जाएगा, डॉक्यूमेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? तो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह में ऐसा है कंपटीशन में कि आप डॉक्यूमेंट ही इतने वो मांगेंगे कि आप रेडी करते करते ही आई थिंक 1 महीने के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है? तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो यहाँ पर मैटर करता है कि यहाँ पर एचडीएफसी क्रेडिला में हम लोग विद इन अ शॉर्ट टाइम में हम लोग आपको रिव्यू करके दे देते हैं, ठीक है? तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? एंड लास्ट पॉइंट इज ऑफ कैंपस एक्सपेंसेस आर देयर कवर्ड इन एजुकेशन लोन। जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि कोई स्टूडेंट यदि जा रहा है तो वहां पर वो कैंपस में नहीं रह के ऑफ कैंपस में रहे। जनरली क्या होता है कि जो कैंपस, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कैंपस रहते हैं, देयर विल बी फार एक्सपेंसेस रादर देन स्टूडेंट जो खुद से ओन रहते हैं, लाइक फ्रेंड सर्कल में मिलकर सब, तो वहां पर जो इनकर्ड होगा वो कॉस्ट थोड़ा कम होगा कंपेयर टू कैंपस एक्सपेंसेस, राइट? तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन है कि ऑफ कैंपस एक्सपेंसेस कवर इन एजुकेशन लोन और नॉट, राइट? सो हियर आंसर इज कि एचडीएफसी क्रेडिला विल कवर ऑफ कैंपस एक्सपेंसेस ऑल, राइट? हम लोग आपको वहां का लिविंग का, जो भी आप बाहर रहते हो तो भी हम आपको लिविंग प्लस फूड सब मिला के टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वी आर फंडिंग, राइट? चिराग भाई, हेलो? या चिराग भाई, सो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, राइट? हाँ, मैं वही पूरा बता, ठीक है मैं ना? तो नोट ठीक है, आफ्टर तो मैं completion of your session we'll have Q&A session. ओके ओके फाइन फाइन फाइन। सो अभी मैं आपको थोड़ा एचडीएफसी क्रेडिला एंड उसके बारे में थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि लोन अप्रूवल इवन बिफोर एडमिट लेटर, जो ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया थोड़ा कि मोस्ट केसेस में जो गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह होती है तो उसमें आपको एडमिट लेटर इज मस्ट फॉर द अप्लाइंग एजुकेशन लोन, राइट? यहाँ पर आप यू कैन वेरी वेल स्टार्ट बिफोर एडमिशन, राइट? जैसे मैंने वो पूरा आपको पॉइंट समझाया कि आपको इसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा। स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को एक मेंटली पीस मिलता है कि चलो एक लोन का पार्ट हो, बरोबर, वो क्लियर हो गया। मेरे बच्चे के लिए जो लोन का मैं मुझे थोड़ा दिक्कत था कि यार लोन मिलेगी नहीं मिलेगी, थोड़े क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मेरे पास एचडीएफसी क्रेडिला में मेरे पास एक ऑप्शन है
कि मेरे पास 40 लाख की 40, 20 जो भी यहाँ पर इतनी लोन मेरे पास ऑलरेडी सैंक्शन है, राइट। तो उनको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही एडमिशन आएगा उसके बाद दे कैन स्टार्ट प्रोसेस विद द डिसबर्समेंट एंड ऑल। जैसे मैंने अभी आपको कनाडा का एग्जांपल बताया कि कनाडा में यहाँ पर आपको डेडलाइन बहुत ही लिमिटेड मिलेगी, ठीक है, विद इन 1 मंथ 15 डेज। मैंने तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हुए हैं लाइव के, उसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने केस किया है, उसमें स्टूडेंट को आई थिंक 15 डेज के अंदर वो पेमेंट करना था, विद इन 15 डेज के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि वो स्टूडेंट है पर्टिकुलर, तो वो एडमिट आने के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करता, तो ये आपको लगता है कि फिजिबल होगा कि 15 डेज के अंदर प्रोसेस होना, ये नहीं फिजिबल है, राइट। कोई प्रोफाइल में मैं मान सकता हूँ, कोई एक्सेप्शनल और अच्छी प्रोफाइल हुई तो फटाफट डिसीजन हो सकता है, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में कोई हो, अच्छी रिटर्न्स वगैरह हो, सब कंप्लीट हो, बट मोस्टली टाइम लगता है। तो इसी के लिए वी आर गिविंग प्री अप्रूव्ड लोन बिफोर एडमिशन, राइट। तो ये भी एक हमारी HDFC क्रेडिला की यूएसपी आप बोल सकते हो कि मार्केट में लोग एडमिशन के बाद आपको लोन अप्रूवल देते हैं। वी आर गिविंग प्री अप्रूव्ड एजुकेशन लोन। आपको इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्री अप्रूव्ड एजुकेशन लोन, अभी स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस आएगा कि कोई भी प्री अप्रूव्ड करवा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। एडमिशन लेटर के बिना आप प्री अप्रूव्ड करवा सकते हैं कि आपका IELTS GRE के जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि IELTS आपका दे दिया, ड्यूओलिंगो दे दिया, GRE दे दिया, कोई भी एक एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट भी आपका आ गया ना, सो यू कैन वेरी वेल स्टार्ट विद योर लोन एप्लीकेशन प्रोसेस विद HDFC क्रेडिला। The second option is unsecured loans up to 45 lakhs, right? हम लोग अनसिक्योर्ड लोन 45 लाख तक का भी अप्रूव कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट बैंक्स में आप लोग जानते होंगे कि दे आर गिविंग 7.5 lakhs लोन विदाउट एनी कोलेटरल। तो उसकी एक लिमिट है कि आपको 7.5 लाख तक का लोन चाहिए, तो वो आप गवर्नमेंट बैंक्स में अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी कोलेटरल, राइट। 7.5 लाख के ऊपर का लोन यदि आपको रिक्वायर्ड है तो आपको प्रॉपर्टी कंपलसरी मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पर HDFC क्रेडिला लोन आपको प्रोवाइड कर रहा है 45 lakhs ऑफ लोन, अप टू 45 लाख लोन अनसिक्योर्ड, विदाउट एनी प्रॉपर्टी, विदाउट एनी मॉर्गेज। सो यहाँ पर एक हमारी ये यूएसपी आप बोल सकते हो कि हमारी ये जो लिमिट है अनसिक्योर्ड की वो थोड़ी कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो काफी सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट को, जैसे मैंने अभी अगले पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा था कि जो प्रॉपर्टी वाला जो मिथ था कोलेटरल वाला, कि मेरे पास ऑलरेडी कोलेटरल है, वो तो दूसरी बैंक्स में ऑलरेडी मॉर्गेज रखी हुई है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो लोग अवॉइड कर देते हैं कि यार एजुकेशन लोन नहीं लेना है, मैं उस पर टॉपअप करवा लेता हूँ। बट वो एक्चुअली गलत है, क्योंकि आप जब उस पर टॉपअप करवाओगे तो एजुकेशन लोन का जो रियल आपको बेनिफिट्स है, जो इंटरेस्ट का, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको हम लोग ऐसे केस में कि जैसे किसी की भी कोई बैंक्स में प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज है, राइट, और उनको अनसिक्योर्ड में अप्लाई करना है, तो हम आपको 45 तक का लोन, 45 लाख तक का लोन आपको अनसिक्योर्ड भी ऑफर कर सकते हैं, राइट, एंड अप टू 100% ऑफ फाइनेंस। जैसे ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि आपको जो है फाइनेंस मिलेगा, ये 100% ऑफ फाइनेंस हम लोग कर रहे हैं, नो मार्जिन मनी कंसेप्ट, राइट। उसमें आपका टोटली सब एक्सपेंस, लिविंग, ट्यूशन फी, आपका ऑफ कैंपस एक्सपेंस, फूड, सब आ गया, टोटल एक्सपेंस वी आर कवरिंग, राइट। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डोर स्टेप डिलीवरी, राइट। मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बैंक्स को, जहां पर ये हमारी HDFC क्रेडिला पिक्चर में आई है, कि पहले क्या था कि लोगों को खुद बैंक में जाके करना पड़ता था सब प्रोसेस। अभी पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, अभी पूरा थोड़ा डिजिटल में हम लोग आ गए हैं, राइट। सो हम लोग आपको यहाँ पर डोर स्टेप सर्विस देंगे, लाइक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो भी HDFC क्रेडिला के रिप्रेजेंटेटिव है आपके घर पे आएंगे, आपको पूरा लोन के प्रोसेस में गाइड करेंगे, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट आर द प्रोसेस, एंड
आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोफाइल में समझेंगे वो अच्छे से, राइट। क्योंकि वहां पर आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जाना नहीं है, ठीक है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डोर स्टेप सर्विस, कि हम वी आर बिलीव इन द डोर स्टेप सर्विस, वी आर बिलीव इन द कस्टमर सर्विस, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80E, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन लोन का एक इनकम टैक्स का अलग ही सेक्शन है, जो अंडर सेक्शन 80E में आपको रिबेट मिलेगा इंटरेस्ट का, ओनली इंटरेस्ट हो, नॉट प्रिंसिपल। आपको इसमें प्रिंसिपल डिडक्शन नहीं ले सकते, ओनली जो इंटरेस्ट पोर्शन है एजुकेशन लोन का वो आप 80E के उसमें क्लेम कर सकते हैं, राइट। कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि लेट से आपने 10 लाख का लोन लिया, तो उसमें से सपोज 10,000 इंटरेस्ट बना, 10,000 इंटू 12 तो 1,20,000 मोटा मोटी हुआ, तो वो 1,20,000 है, यहाँ पर एनम आपको 80E में डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। इसका आपको थोड़ा मैं ज़्यादा क्लैरिटी देता हूँ एक एग्जांपल लेके, कि लेट से कोई पेरेंट्स की प्रोफाइल और उनकी सैलरी, वो लेट से वो 30% के ब्रैकेट में आते हैं, 20% के, और वटेवर जो भी ब्रैकेट में आते हैं टैक्स ब्रैकेट में। कोई पेरेंट्स की सपोज सब जो भी सेंक्शन है इनकम टैक्स के वो डिडक्शन ले लिए, 80C 80D और वटेवर जो भी आ रहे हैं, मेडिक्लेम के, LIC पॉलिसी के, सब जो भी है, ठीक है। उसकी सबकी लिमिट है 1.5 लाख तक की। 80C आपको लिमिट 1.5 लाख तक की कवर करेगा वो। उसके बाद आपको दूसरे सेक्शन में एग्जेप्शंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई पेरेंट्स की यदि इनकम है कि सब कट करके उनकी टैक्सेबल इनकम लेट से 6 लाख रुपए आई, तो भी उनको जो भी 1 लाख के 5 लाख के ऊपर का है जो भी टैक्स लैब, तो 1 लाख पे उनको टैक्स जाएगा। तो वो केस में वो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि एजुकेशन लोन यदि उन्होंने ऑप्ट किया है तो वो 80E के अंडर में वो टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। कि लेट से जैसे 1,20,000 वाला जो एग्जांपल दिया कि 1,20,000 इज अ टोटल इंटरेस्ट पार्ट, राइट। तो 1,20,000 ये उनको डिडक्शन मिल जाएगा। तो 6 लाख उनका टैक्सेबल इनकम था, 6 में से भी 1,20,000 माइनस हो गया, तो उसकी टैक्सेबल इनकम इज द बिलो 5 लाख, तो वहां पर वो अपना टैक्स बचा सकते हैं, राइट। सो ये आपको बेनिफिट्स मिलेगा अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स। और वी आर द ओनली NBFC, जो एक पॉइंट्स मैंने क्लियर किया था, वी आर द ओनली NBFC which is providing under section 80E benefits. मार्केट में देर आर अदर कॉम्पिटिशन, अदर कंपनीज एज वेल। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट बैंक्स, कि गवर्नमेंट बैंक्स तो सब इसमें 80E में आते ही है, बट जो मार्केट में जो भी अदर प्राइवेट कंपनीज है, राइट, NBFC, तो वहां पर आपको ये 80E का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। यदि वो NBFC है तो वो नहीं दे सकती, राइट, 80E का बेनिफिट्स। And one of the most important parameter, web enabled billing and services, right? So हम लोग अभी क्या करें, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी का जो करंट सिनारियो है कोविड में, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों ने भी किया होगा 100%, कि कोविड सिचुएशंस में अभी जो मार्केट में है, अभी लोग फिजिकली मिलना कम हो गए, जैसे हम अभी अब आज वेबिनार से इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो ये कोविड ने हमें सिखा दिया है कि ये जो अभी जो एरा आएगा वो डिजिटल एरा है, ठीक है। सो ये डिजिटल से हम लोग कैसे कनेक्ट करें हमारे कस्टमर्स। सो आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप HDFC क्रेडिला के रिप्रेजेंटेटिव के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी वेब इनेबल्ड सर्विसेज, राइट। सो हमारा पूरा डिजिटल है। इवन हम लोगों ने अभी लास्ट 3 महीने से हमारा जो पूरा एग्रीमेंट जो पहले फिजिकल था वो अनसिक्योर्ड में वी आर इम्प्लीमेंटिंग E-एग्रीमेंट प्रोसेस, राइट। तो ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से हमें काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस, अच्छे वाइब्स मिल रहे हैं कि ये आपका ग्रेट सर्विस है, कि हमें खुद आना नहीं पड़े और आप डिजिटली जो आधार बेस्ड OTP है, वहां आधार बेस्ड OTP से उनका एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और उनको दूसरे ही दिन उनके अकाउंट में पैसे भी मिल जाएंगे डिस्बर्समेंट के, और उनकी जो फीस होगी वो हमारे फॉरेक्स वाले पे कर देंगे, राइट। सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस काइंड ऑफ डिजिटल सर्विसेज के कस्टमर को
तकलीफ नहीं हो, पेरेंट्स और स्टूडेंट को जितना हो सके उतना वो लोग अपने काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, राइट। जैसे मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट बैंक्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो लोग अभी भी पुरानी मेंटालिटी जो फिजिकल प्रोसेस में वो लोग कर रहे हैं, इवन एग्रीमेंट फिजिकल साइन करवा रहे हैं। स्टूडेंट यदि ट्रैवलिंग करके बाहर गया है, राइट, तो वो लोग स्टूडेंट का भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, राइट। उनको पावर ऑफ अटर्नी देके जाना पड़ेगा स्टूडेंट को, तो वो लेंथी प्रोसेस है, लेंथी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। पेरेंट्स को एवरी टाइम बैंक में विजिट करना पड़ेगा डिसबर्समेंट के लिए। जैसे यूएस में आप आफ्टर एवरी 6 मंथ आपको डिसबर्समेंट रिक्वायरमेंट रहेगा, राइट। तो 6-6 महीने में आपको वहां पर जाके वहां पर पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होके आपका टाइम निकाल के वहां पर पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये पूरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट। दूसरा एक पॉइंट है ऑफ कैंपस एक्सपेंसेस कवर्ड, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि वी आर वेरी वेल कवर ऑफ कैंपस एक्सपेंसेस, योर फूड लिविंग सब हम कवर करेंगे। डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, राइट। तो यहाँ पर आपको HDFC क्रेडिला में एक रिलेशनशिप मैनेजर आपको असाइन किया जाएगा, जो कि आपको एंटायर प्रोसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर लोन प्रोसेस एंड ऑल्सो आफ्टर सेल्स सर्विस, राइट, कि आपने लोन ले लिया उसके बाद की जो सर्विस है, राइट, वो आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, एक सर्विस का मैनेजर भी असाइन होगा, तो वो पूरा आपका मैनेज कर लेगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ काम हो तो आप यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विथ दैट गाय, तो वो आपको पूरा कनेक्ट करके जो भी आपको सर्विस के ओरिएंटेड, जो लोन की प्रोसेस के लिए, जो डिसबर्समेंट और रीपेमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। आपको टैक्स 80 जो बेनिफिट्स बताया, उसमें आपको 80 में सैंक्शन में डेबिट डिडक्शन लेने के लिए आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वहां पर शो करना पड़ेगा। जो भी आपके पर्टिकुलर CA जो रिटर्न फाइल करेंगे, तब आपको पेरेंट्स को वहां पर वो फाइल करना पड़ेगा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट विथ स्टैम्प एंड साइन ऑफ HDFC क्रेडिला, जो कि वहां पर हमारा ऑनलाइन ही आएगा आपको हमारे लोगों के साथ, राइट। तो ये सब चीजें आपको घर बैठा मिलेगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, राइट। दूसरे पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑन कोलेटरल एंड को बोरोवर। ये हमारी मैं यूएसपी बोल सकता हूँ HDFC क्रेडिला की, कि मोस्ट ऑफ केसेस में जैसे कोलेटरल एंड को बोरोवर की फ्लेक्सिबिलिटी वो लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते, राइट। अभी बहुत सारे केसेस में होता है कि लाइक स्टूडेंट्स के जो भी फादर मदर होते हैं, राइट, उनकी प्रोफाइल लाइक वो कुछ फार्मिंग कर रहे हैं या कुछ ITR नहीं भर रहे, मे बी वी कम अक्रॉस मेनी सिनेरियो, राइट। सो वो केस में HDFC क्रेडिला में ऑप्शन है कि वी आर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ को बोरोवर ऑल्सो। सो यहाँ पर क्या रहेगा, स्टूडेंट्स को पता रहेगा कि मेरे पास मेरे फादर का रिटर्न्स में नहीं है, 1 साल का ही है, या तो रिटर्न फाइल नहीं करते, मेरे फादर फार्मर है, मदर फार्मर है, व्हाटएवर, तो उनके पास यदि कोई स्ट्रॉन्ग को बोरोवर है, सो वी आर टेकिंग दैट ऑल्सो, राइट। कि कोई भी स्टूडेंट के फर्स्ट रिलेटिव वो को बोरोवर में लोन स्ट्रक्चर पे आ सकते हैं, लाइक स्टूडेंट के मामा मासी कोई भी आ सकते हैं, व्हाटएवर फर्स्ट रिलेटिव, राइट। तो वो स्टूडेंट उनको ले सकता है को बोरोवर में, राइट। और कोलेटरल पार्ट में भी जैसे मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि वी आर फ्लेक्सिबल, राइट। कोलेटरल पार्ट में भी कि कोई बोलता है कि जो मेरी कोलेटरल में है ऐसा ऐसा थोड़ा इश्यू है, माइनर इश्यू है, सो हम लोग वो चीज में फ्लेक्सिबल है। गवर्नमेंट बैंक से ऐसा नहीं है कि ये चीज चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी चाहिए होगा। कुछ कुछ केसेस में हम लोग अप्रूवल लेके भी वी कैन प्रोसीड, वो हमारे लीगल का हम लोग अप्रूवल लेते हैं, लीगल टीम का, एंड हमारी लीगल टीम सजेस्ट करती है कि ये पर्टिकुलर चीज चाहिए होगा और ये पर्टिकुलर चीज नहीं होगा तो इट्स ओके, बाकी सब क्लियर है। तो हमारे पास कोलेटरल में भी फ्लेक्सिबल है हम लोग, बरोबर। जैसे कोई केस में गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह में होता है कि वो लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अपफ्रंट लेने से मना कर देते, राइट। मोस्टली केसेस में बैंक्स आर नॉट एक्सेप्टिंग कोलेटरल एज अ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, वो लोग नहीं लेते, राइट। बट यहाँ पर HDFC क्रेडिला में हम रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इवन प्लॉट भी लेते हैं हम लोग, NA प्लॉट,
आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट, नॉट एग्रीकल्चर लैंड, राइट। जो प्लॉट होता है, जो एनए प्लॉट होता है कि जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है बट वो नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट है, परमिशन के साथ वो किया हुआ है, राइट। तो हम वो भी ले सकते हैं एज ए कोलेट्रल। सो यहाँ तक HDFC क्रेडिला में फ्लेक्सिबिलिटी है ऑन कोलेट्रल पार्ट, राइट। एंड हमारी जो लॉगिन प्रोसेस है वो भी हमारी कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है। वहां पर आपको कुछ फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एंटायरली प्रोसेस डिजिटल है। हमारे जो भी सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो आपसे कनेक्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे एजुकेशन लोन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट देना है, राइट, पूरी प्रोसेस कैसे रहेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उनको डिजिटल जो कॉपीज होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की वो सिर्फ प्रोवाइड कर देनी है। देन वी कैन स्टार्ट विथ योर एजुकेशन लोन प्रोसेस, राइट। एंड ये इम्पोर्टेंट एक वन ऑफ द पैरामीटर्स है ऑनलाइन KYC। तो हम लोगों ने अभी ऑनलाइन वीडियो KYC भी करना स्टार्ट कर दिया है कि जैसे डिसबर्समेंट टाइम पे फिजिकल डॉक्यूमेंट पहले हम लोग लेते थे कि वी आर टेकिंग आधार कार्ड, पैन कार्ड्स एंड ऑल हार्ड कॉपीज, राइट। तो वो केस में अभी वहां पर भी हम लोगों ने डिजिटल कर दिया है कि यू कैन वेरी वेल गो टू अवर लिंक एंड आप अपलोड कर सकते हैं आधार बेस्ड KYC। और आपका आई थिंक 5 to 10 मिनट्स का स्मूथ प्रोसेस है। आपका एक हमारा एक एग्जीक्यूटिव होगा सामने, तो वो आपको वीडियो KYC सेशन में गाइड करेगा। वो जैसे गाइड करेगा वैसे आपका वीडियो से KYC सेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो अभी हम वो लोग फिजिकल KYC के मोड से भी धीरे धीरे ऑनलाइन के मोड में शिफ्ट हो गए हैं, राइट। बाद में जो ये पैरामीटर है TCS ऑन एजुकेशन लोन, राइट। तो इसमें एजुकेशन लोन में जो TCS का एक पैरामीटर्स रहता है कि आप फॉरेक्स जब करोगे एजुकेशन लोन वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द पर्पज ऑफ द ट्यूशन फीस एंड फॉरेन एक्सपेंसेस, राइट। we are not funding any expenses other than education related, like कोई आके बोलता है कि यार एजुकेशन लोन आप दे दो, आप मेरे अकाउंट में हमें बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स मिलते हैं कि जैसे वो बोलते हैं कि यार अमित भाई एक काम करो, आप आपको तो क्या लेना देना है, आप 15 या 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं ना, आप एजुकेशन लोन ही दे रहे हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हम लोग एजुकेशन लोन दे रहे हैं, वी आर नॉट सेलिंग एनी अदर लोन्स, राइट। सो यहाँ पर एजुकेशन लोन का आपको फॉरेक्स करना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में कैसे रहेंगे कि हम आपको इंडियन रुपीज में आपके पेरेंट्स के अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देंगे, बट इट हैज टू बी रूटेड थ्रू फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, क्योंकि हम लोग आपको वहां पर आपका जो भी कंट्रीज है, कनाडा, US, UK, स्पेन, व्हाटएवर जो भी कंट्रीज है, वहां पर आपको यूज करना है जो भी वो करेंसी में है, राइट। हम आपको वो करेंसी में फीस पे करेंगे। कनाडा है तो हम लोग कैनेडियन डॉलर में पे करेंगे, US है तो हम USD में पे करेंगे, राइट। तो जो फॉरेक्स जो ट्रांजेक्शन्स होगा तो उसमें एक TCS होता है, ये गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। जैसे यू मस्ट बी अवेयर अबाउट FD TDS, राइट। सब लोगों को पता है कि हम लोग FD बुक करते हैं तो FD में एक TDS रेट कटता है, जो भी इंटरेस्ट हम लोग अर्न करते हैं उसमें से गवर्नमेंट वो TDS काट लेती है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम गवर्नमेंट ने एक TCS एप्लीकेबल किया है ऑन द फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, राइट। तो यहाँ पर आपका जो भी फॉरेक्स ट्रांजेक्शन रूट होगा वहां पर आपको TCS लगेगा। तो वो TCS है वो समवेयर अराउंड 0.5 to 5% तक। यदि आप यहाँ पर सेल्फ फंडिंग यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जो भी मिथ के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि कोई लोग फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि मैं पर्सनल लोन ऑप्ट कर लेता हूँ, एजुकेशन लोन में तो यार कौन पड़ेगा, इतने दिन लग रहे हैं, ऐसा ऐसा जो भी है, राइट। तो उन लोगों को जो भी वहां पर यहाँ पर सेल्फ फंडिंग खुद अपना डाल रहे हैं तो वहां पर उनको जो TCS का रेट लगेगा वो दैट वुड बी हायर चार्ज, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि ये पर्टिकुलर पर्सन कैपेबल है तभी तो ये एजुकेशन लोन की, यार कोई भी लोन लेके बिना ही वो लोग फंडिंग कर रहे हैं एजुकेशन का, राइट। तो उसमें जो TCS का गवर्नमेंट ने जो सेट किया है दैट विल बी हायर साइड 5%। और इफ यू आर टेकिंग एजुकेशन लोन, आप एजुकेशन लोन लेके
हमारे से जो फॉरेक्स आप करवाएंगे तो उसमें जो फॉरेक्स का जो चार्ज होगा दैट विल बी वेरी लो, राइट। तो उसमें आपको 0.5% ओनली पे करना पड़ेगा TCS, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग पैसा बचा सकते हैं TCS पार्ट में भी। अभी यहाँ पर थोड़ा ये कंपैरिजन है। पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और दूसरी कोई भी लोन के वर्सेस HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन, राइट। सो यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल्स दिया हुआ है पर्सनल लोन का, लेप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का एंड HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन का। यहाँ पर कंपैरिजन के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे एजुकेशन लोन कैसे बेटर है, राइट। तो यहाँ पर जो लोन अमाउंट है पर्सनल लोन में मैक्सिमम 20 या 25 तक आज कल देते हैं, राइट। मैक्सिमम इतना भी नहीं हो पाए, वो भी प्रोफाइल पे बेसिस पे होता है, राइट। वो भी पेरेंट्स के प्रोफाइल के ऊपर वो लोग मैक्सिमम 20 या 25 तक का वो लोग मैक्सिमम लोन दे सकते हैं, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट LAP लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आपको जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी उसका आपको 60 to 65% लोन मिलेगा। और मैं यहाँ पर एजुकेशन लोन HDFC क्रेडिला की बात करूँ तो यहाँ पर 100% फाइनेंस हम लोग कर रहे हैं। एजुकेशन लोन कॉस्ट प्लस लिविंग एंड एक्सपेंसेस रिलेवेंट टू एजुकेशन, राइट। तो यहाँ पर आपको सीधा फायदा दिख रहा है कि 100% यहाँ पर जो भी कॉस्टिंग है वो एजुकेशन लोन कवर कर रहा है, बाकी सब जगह पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, बराबर। लैब में भी आपको प्रॉपर्टी की जो 60-65% वैल्यू है तब तक मैक्सिमम मिलेगी, राइट। और टैक्स बेनिफिट की यदि मैं बात करूं तो टैक्स बेनिफिट में यहाँ पर पर्सनल लोन में कोई बेनिफिट नहीं है टैक्स का। इवन सेम इज राइट विद द लैब ऑल्सो, कि यहाँ पर लैब में भी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी सिंगल टैक्स बेनिफिट भी नहीं है। एजुकेशन लोन में यहाँ पर 80 का टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। जैसे ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि लोग पर्सनल फंड या कुछ भी यूज कर लेते तो यहाँ पर टैक्स सेविंग से उनको फायदा मिलेगा, लाइक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक चीज और आपको एक्सप्लोर कर देता हूँ कि इफ यू आर ब्रेकिंग योर कैपिटल, राइट, कि कुछ पेरेंट्स ने सपोज डिसाइड किया कि मेरे पास अभी इतने पैसे, मेरे पास तो 40 लाख रुपए की FDs पड़ी है, तो अच्छा रहेगा कि यार मैं एजुकेशन लोन या कोई भी लोन में क्यों पढूं, मैं डायरेक्टली मेरी FD ब्रेक करके मेरे बच्चे को फंड कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने एक टैक्स बेनिफिट का तो लॉस किया। दूसरा एंड फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट जो लॉस हुआ यहाँ पर पेरेंट्स का और इवन स्टूडेंट का भी बोल सकते हैं, तो वो हुआ अपॉर्चुनिटी लॉस, जो भी उनको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका, राइट। कि उनको जो उनका हार्ड एंड सेविंग्स है, उनका ऑलरेडी एक कैपिटल है जो पहले इन्वेस्ट किया हुआ है एक जगह पर, तो वो ब्रेक कर देंगे तो वहां पर उनको जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा था, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो उनको मनी मेक्स मनी, एक ये आपने सब लोगों ने सुना होगा, राइट। तो इसमें कैसा होता है कंपाउंडिंग फैक्टर्स में आपका जो भी कैपिटल है वो इंक्रीजिंग हो रहा है ऑन द कंपाउंडिंग बेस, राइट। 40 लाख रुपए है तो 40 लाख पे सपोज एनुअल इंटरेस्ट 40,000 भी हुआ दूसरा या जो भी हुआ, तो ऐसे करके वो इंक्रीज होते जाए तो कैपिटल बढ़ जाती है आपकी, राइट। और यदि आपने वो कैपिटल ब्रेक कर दी तो वो आपका कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो आपका स्टॉप हो गया, राइट। तो ये सिनारियो में जो भी कोविड की सिचुएशन है, तो अभी लोग धीरे धीरे एजुकेट होने लगे हैं कि मोस्टली केस में लोग अपनी कैपिटल प्रिजर्व रखते हैं कि कैपिटल मुझे कुछ भी, अभी हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस भी आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कोई भी छोटे मोटे हॉस्पिटल में भी जाए, कोई भी छोटी मोटी बीमारी भी होगी, इट्स बिल्स इन द थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, राइट। तो ये केस में कैसा होता है कि हमारी सेविंग्स इंपॉर्टेंस होती है, कुछ भी करके सेविंग्स अपनी कैपिटल कुछ तो रखनी चाहिए, राइट। कुछ कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि यार शॉर्टकट निकाल लेते हैं कि यार अभी के लिए तो चलो अभी फिलहाल तो अपना काम चल जाएगा, अभी मैं तोड़ के एक्सपेंस,
मेरे बियर कर लेता हूँ, राइट। तो वहां पर आपको एक तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहां पर आपकी जो फंड जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे अर्न हो रहा था, राइट, अर्निंग आपको चालू था, वो वहां पर आपका स्टॉप हो गया, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज डिसबर्समेंट ऑप्शन। यहाँ पर आपको ये काफी अच्छा एक समझने का पॉइंट है कि पर्सनल लोन और इवन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपको डिसबर्समेंट फुल अमाउंट पे मिल जाएगा, टोटल आपको लोन डिसबर्स कर देंगे, राइट। जैसे आपने 20 लाख का पर्सनल लोन लिया, तो कंपनी आपके फादर के अकाउंट्स में 20 लाख का लोन डिसबर्स कर देगी। तो आपको क्या होगा कि जैसे ही डिसबर्समेंट हुआ तो वहां पर आपका लोन का जो ईएमआई का जो भी इंटरेस्ट पार्ट है वो चालू हो जाएगा, राइट। आपका पेमेंट भी तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो रीपेमेंट जो प्रोसेस है वो आपकी अर्ली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डिसबर्समेंट कंपनी ने फुल दे दिया। जैसे ही डिसबर्समेंट दे दिया, बैंक ने अपना चक्कर घुमाना चालू कर दिया इंटरेस्ट पार्ट का, राइट। एंड जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आपको फुल लोन अमाउंट डिसबर्स कर देंगे, उसके बाद आपको पूरा इंटरेस्ट का पोर्शन आपको चालू हो जाएगा, राइट। इन एचडीएफसी क्रेडिला एजुकेशन लोन, यहाँ पर हम आपको एक ऑप्शन देंगे कि डिसबर्समेंट जो है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड द को-बोरोवर, राइट। जैसे मैंने अभी एक यूएस का एग्जांपल बताया कि यूएस में मोस्टली क्या होता है कि सेमेस्टर पैटर्न पे यूनिवर्सिटीज आर डिमांडिंग फीस, राइट। तो वहां पर स्टूडेंट्स को एवरी सेमेस्टर अपनी फीस भरनी होती है, राइट। तो हम लोग क्यों अननेसेसरी पूरा बर्डन ले अपने साथ। जैसे कि अभी लेट से मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि लेट से यू हैव टेकन 40 lakhs ऑफ एजुकेशन लोन, राइट। सो यहाँ पर हम लोग आपको 40 में से 40 लाख पूरे के पूरे नहीं दे रहे हैं अभी आपको, राइट। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट 40 lakhs पे नहीं चालू होगा। एक पॉइंट्स में शायद मेंशंस करना रह गया है, ये जो मीथ है ना, वहां पर भी एक जो मीथ वाले जो मैंने डिस्कस किया था, तो एक मीथ ये भी हो सकती है कि लोगों को ऐसा है कि कोई लोग सोचते हैं कि यार एजुकेशन लोन और कोई भी लोन होती है ना, तो उसमें डायरेक्टली पूरा डिसबर्समेंट लेना पड़ता है, तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं क्यों लूं, राइट। तो यहाँ पर हम आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, कोई केसेस में ऐसा भी हमने देखा है कि स्टूडेंट ने 40 lakhs की लोन सैंक्शन कराई, so he has end up getting disbursement up until I think 20 lakhs or 25 lakhs। तो बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यूज नहीं करेगा, तो भी हम लोग आपको फोर्स नहीं करेंगे कि अभी लेना ही है आपको, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। यदि वहां पर स्टूडेंट यदि जॉब पे सेटल हो गया है, तो आपका सपोज 20 में काम चल गया है, तो हम आपको 20 का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, राइट। आपको 40 के हिसाब से कुछ भी नहीं पे करना है। तो ये एक अच्छा ये पॉइंट है कि डिसबर्समेंट ऑप्शंस में वी आर फ्लेक्सिबल, एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको डिसबर्समेंट लेना है, आपको रिक्वेस्ट करनी है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि इस चीज में भी हम लोग डिजिटल है। आपको जो डिसबर्समेंट की जो ट्रांच रिक्वेस्ट करनी है, जो सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए जो भी फर्दर रिक्वायरमेंट्स है, तो उसमें हमारा एक एप्लीकेशन है एचडीएफसी क्रेडिला का, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर से ही आपको डायरेक्टली इनिशिएट डिसबर्समेंट की रिक्वेस्ट डाल देनी है। तो टोटली पेपरलेस प्रोसेस है, राइट। तो ये डिसबर्समेंट आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टूडेंट जैसे ही वहां पर पंच करेगा, यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, हम लोग तुरंत यूनिवर्सिटी को फीस ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एक ऑप्शन आपको अच्छा मिल जाएगा डिसबर्समेंट का ऑप्शन। ये मैंने पॉइंट्स आपको डिस्कस किया था। रीपेमेंट ऑप्शंस में भी वी आर फ्लेक्सिबल, वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल ऑप्शंस एज पर द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स रिक्वायरमेंट्स के वो कौन से ऑप्शंस में जाना चाहते हैं रीपेमेंट्स में। यहाँ पर ये दोनों लोन में आपने देखा होगा कि इवन पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपका ईएमआई जो है वो स्टार्ट हो जाता है इमीडिएट बेसिस पे। यहाँ पर कोई भी आपको मोरेटोरियम पीरियड कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेगा। हमारे केस में इन एचडीएफसी क्रेडिला वी हैव ऑप्शंस ऑफ रीपेमेंट्स, लाइक ईएमआई भी आप कर सकते हैं, आप पार्शियल इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। कोई केस में जो गवर्नमेंट प्रोफाइल्स होती है तो वो लोग हमें इंसिस्ट करते हैं कि फुल इंटरेस्ट मुझे पे करना है, तो हम वो केस में फुल इंटरेस्ट भी अलाउड करते हैं। तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस एज पर द कस्टमर्स एंड को बोरोवर्स रिक्वायरमेंट्स, के पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, बरोबर, उनको टैक्स क्लेम के लिए कितना डिडक्शन के लिए कितना तक वो पे करना है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। आपके सीए के साथ डिस्कस करके भी कर सकते हो कि मुझे कितना इंटरेस्ट में पे करूं कि मुझे मेरा टैक्स में बेनिफिट्स मिले।
तो यहाँ पर अपना रीपेमेंट ऑप्शंस में वी आर फ्लेक्सिबल इनफ। एंड रीपेमेंट टेन्योर में ये पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था कि वी आर गिविंग अप टू 15 ईयर्स, राइट। 14 to 15 ईयर्स तक का टेन्योर मैक्सिमम आप आपको दे सकते हैं। बाकी सब लोन में, यहाँ पर पर्सनल लोन में मैक्सिमम 5 ईयर्स प्रोवाइड करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में अप टू 15 ईयर्स तक का आपको मिलेगा, राइट। यहाँ पर मैं आपको हमारा प्रोडक्ट के बारे में करूँगा। या सो हमारे जो प्रोडक्ट्स है कंट्रीज वाइज सब अलग अलग है। लाइक यूएसए के लिए, कनाडा के लिए, अदर कंट्रीज के लिए क्या प्रोडक्ट्स है वो हमने डिजाइन किया है अकॉर्डिंग टू कौन सा कोर्सेज है, राइट। वो सब के लिए हम लोग करते हैं। तो यूएस एंड कनाडा में आप लोग देख सकते हो कि मास्टर्स के लिए हम लोग 45 तक का लोन अप्रूव कर सकते हैं, 45 लाख, राइट। ये लिमिट अभी हम लोगों ने थोड़ी बढ़ाई है, बट अभी मैंने इसमें मेंशन इसके लिए नहीं किया है कि उस पर थोड़ा वर्कआउट चालू है कि हम लोग कुछ केस में 45 लाख के ऊपर भी अनसिक्योर्ड में देना स्टार्ट किए हैं। बट वो अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उनके को बोरोवर की प्रोफाइल क्या है, पेरेंट्स की प्रोफाइल क्या है, स्टूडेंट की प्रोफाइल्स क्या है, कौन से कोर्स के लिए जा रहा है, कौन से कंट्रीज के लिए जा रहा है, राइट। तो इसमें हम लोग जस्ट यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, राइट। एमबीए का जो कोर्स है उसमें हम लोग 25 लाख तक का कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट में हम लोग अनसिक्योर्ड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अंडर ग्रेजुएट में कैसा है कि हम लोगों को सिक्योर्ड कंपलसरी करना पड़ेगा, राइट। और अनसिक्योर्ड में जो लिमिट्स है, यहाँ पर सिक्योर्ड में कोई भी लिमिट्स नहीं है। सिक्योर्ड में आप जो भी रेसिडेंशियल, मैंने जैसे बताया कि एनए प्लॉट एफडी के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं, उसमें कोई लिमिट्स नहीं है। आपका कोलेट्रल का जितना भी वैल्यूएशन आएगा उसका हम लोग आपको 100% प्रोवाइड करेंगे। और बाकी सब कंट्रीज है तो उसमें हम लोग मास्टर्स में अप टू 25 लाख तक देते हैं अनसिक्योर्ड, एमबीए है तो अप टू 15 लाख, और अंडर ग्रेड है तो सेम चीज। यहाँ पर अंडर ग्रेड में भी हम लोग, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो हम अनसिक्योर्ड नहीं करते हैं, वी विल टेक प्रॉपर्टी, राइट। सिक्योर्ड में कोई अपर लिमिट नहीं है। सेम चीज यहाँ पर कोलेटरल में आप क्या क्या ऑफर कर सकते हो मैंने डिस्कस किया था, ये सब चीज आप देख सकते हैं, राइट। HDFC क्रेडिला का एक वन स्टॉप, एक काफी यूनिक हमारा फीचर्स है, राइट, कि स्टूडेंट्स ने एजुकेशन लोन्स HDFC क्रेडिला से ले लिया है तो वी आर गिविंग वन स्टॉप सॉल्यूशन कि वहां पर वो स्टूडेंट्स कुछ वाउचर्स के उनको कुछ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं नेविगर्स, DHL, तो सब अपोलो फार्मेसी है, तो वाउचर्स यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, डिस्काउंट्स। तो ये स्टूडेंट्स को बाय डिफॉल्ट बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ पर मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, सो यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विथ मी इफ हैव एनी क्वेरीज, और आपको कुछ लग रहा है फ्यूचर में डिस्कस करना है, सो आप मुझे चिराग भाई का रेफरेंस देके आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको फोन पे भी गाइड कर सकता हूँ कि कुछ भी आपको क्वेरीज है तो मैं सोल्व कर सकता हूँ। आपके पेरेंट्स को भी कुछ है तो यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली, राइट। So guys, if you have any queries, now our question answer session is going to start. So if you have any doubts, you can unmute yourself and ask the questions. अमित भाई, बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया है। थैंक यू So many चिराग things भाई। actually मुझे भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, इतना ज्यादा आपने बताया। हाँ, मैंने इसीलिए थोड़ा डिटेल्स में बताया कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को जो भी थोड़ा मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं तो ये सब पैरामीटर्स पे मोस्टली रहता है। या हेलो हेलो, यस यस, बोलिए बोलिए सर। सर ये जो अनसिक्योर सिक्योर लोन लेते हैं तो दोनों केस में टैक्स बेनिफिट मिलता है? यस यस यस, टैक्स बेनिफिट तो कॉमन है। टैक्स बेनिफिट में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं।
यू कैन Okay. वेरी वेल क्लेम विथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, दोनों केस में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स बेनिफिट आपको 80E में पूरा मिलेगा, जैसे मैंने बेनिफिट्स बताया। यू कैन क्लेम 80E टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट पार्ट नॉट प्रिंसिपल, ओनली इंटरेस्ट पार्ट। इंटरेस्ट पार्ट में कोई कैपिंग नहीं है, पूरा मिलेगा। 1.5 लाख 2 लाख जो भी आप पैसे ले रहे हो, उसके इंटरेस्ट पार्ट जो भी आप पे कर रहे हो, वो आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। और सर मैं कनाडा से यहाँ फॉरेन से वापस आऊँ बाद में पढ़ने के बाद, तो हाँ। टैक्स बेनिफिट मैं ले सकता हूँ या मेरे पेरेंट्स को ही लेना पड़ेगा? नहीं, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स ले सकते हैं, स्टूडेंट्स एंड दोनों पेरेंट्स इधर? दोनों ले सकते हैं। एग्जैक्टली, इधर इधर दोनों ले सकते ओके ओके सर, हैं, राइट। थैंक यू सर। और अदर देन लाइक पेरेंट्स के अदर देन है तो वो नहीं ले सकते हैं, तो वो आपको इनकम टैक्स की साइट पे ज्यादा 80 का जो सेक्शन है ना, वो इनकम टैक्स की साइट पे जाके एजुकेशन लोन का आप पूरा डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से उसमें ले सकते हैं, ओके सर, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? चिराग भाई, कोई पेरेंट्स भी है या मोस्टली स्टूडेंट्स है? मोस्ट पेरेंट्स ऑफ है द किसी? स्टूडेंट्स ही रहेंगे, ओके ज्यादातर ओके students। ओके। और सर इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? इंटरेस्ट रेट सर यहाँ पर हमारा फ्लेक्सिबल है, वी आर वेरी Okay. फ्लेक्सिबल इन इंटरेस्ट रेट पार्ट। सो यू कैन, मैं आपको एक रेंज बता सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट पैरामीटर्स है ना, वो कुछ प्रोफाइल्स पे डिपेंड्स होता है कि हम लोग स्टूडेंट की प्रोफाइल देखते हैं, को बोरोवर की प्रोफाइल देखते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग उसको इंटरेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, राइट। ओके सर। बट एक चीज मैं आपको बोल सकता हूँ कि उसमें हम लोग फ्लेक्सिबल है। इंटरेस्ट पार्ट में आज तक कोई भी स्टूडेंट और कोई भी पेरेंट्स ने एचडीएफसी क्रेडिट ला के इंटरेस्ट पार्ट के लिए लोन नहीं लिया, ऐसा नहीं बना है आज तक। ओके, मिस सर रेंज आपने बोला रेंज, कितना हाँ, रहेगा? रेंज मैं आपको बता देता हूँ कि वी आर गिविंग 10 to 11% इन सिक्योर्ड केसेस, कि आप प्रॉपर्टी Okay. कोलेटरल के साथ करते हैं तो वी आर गिविंग 10 to 11%, राइट। एंड अनसिक्योर्ड में आप जाते हैं तो 11 to 12% की रेंज है, राइट। इस बीच में ही वेरी करेगा। कोई केस में हम एक्सेप्शनल कर सकते हैं, यूएसए में अभी स्टार्ट किया है कि अच्छी प्रोफाइल्स है, यदि जीआरई अच्छा है, को बोरोवर की प्रोफाइल अच्छी है पेरेंट्स की, तो कुछ केसेस में उससे भी हम लोग कम कर सकते हैं, बट वो केस टू केस बेसिस होगा, तो वो हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं, डोंट वरी, वो हम कर सकते हैं अलग से। ओके। और सर इसमें कोई प्रोसेसिंग चार्ज लगता है? यस, प्रोसेसिंग फी इज वेरी वेल इज देयर। प्रोसेसिंग फी आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी जो प्रोसेसिंग फी है ये 1 से 1.5% तक की रेंज में है, तो वो भी अगेन हमारी पास फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, आप 1 से 1.5% के बीच में पकड़ के चल सकते हैं, बट वो भी हम सिक्योर और लोग अनसिक्योर्ड? हाँ दोनों में, सिक्योर उसमें अनसिक्योर्ड दोनों हाँ में हाँ सेम है? दोनों में सेम है, उसमें कुछ नहीं है। प्रोसेसिंग फी वो 1 टाइम रहती है, तो उसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों में 1 टाइम प्रोसेसिंग 1 से 1.5% के बीच में रह सकती है। ओके सर, थैंक यू। So guys, is there any more questions? सर ये जो आपने टीसीएस जो चार्ज बोला है ना, टीसीएस ऑन एजुकेशन यस लोन, यस यस, फोरेक्स एजुकेशन लोन, हाँ फोरेक्स में फॉरेक्स चार्ज TCS रहता है, राइट। 0.05% हमने बोला, और 0.5 अदर्स 0.5, हाँ, यस और अदर सेविंग्स में से ट्रांसफर करते 5% लगता है, ऐसा कुछ बोला आपने? यस 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 यस, जो सेल्फ फंडिंग यदि अब कोई भी आप करते हैं तो उसमें 5% तक का लग सकता है, साथ 0.5 to 5% तक की है। बट आप Okay. एजुकेशन लोन का उसमें दिखाएंगे कि ये फंड आपने एजुकेशन लोन में से लेके किया है, तो यहाँ पर Okay. आपका वो 0.5 के ब्रैकेट में चार्ज होगा। 0.5 या 0.05? 0.5 सर। 0.5, ओके। हेलो। यस यस संजीव। यस सर, क्या हम एमबीए के बाद कोई 1 ईयर कोर्स में एनरोल करें तो लोन मिल सकता है एचडीएफसी कैडिला पे? यस मिल सकता है, मिल सकता है, मिल सकता है। हमारे पास ऐसे कोर्स की कुछ बायस नहीं है, कोई भी कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लाइक कंट्रीज का भी हम लोग करते हैं, बट हम लोग क्या वो फिर प्रोफाइल टू प्रोफाइल जाते हैं कि आपकी क्या प्रोफाइल है, आपके को बोरोवर में कौन है, उसके बेसिस पे हम लोग रिव्यू करते हैं। आप एमबीए की बात भी हम लोग करते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ईयर के कोर्स भी हम लोगों ने काफी फंड किए हैं, काफी सारे केसेस फंड किए हैं 1 ईयर के भी, ओके, थैंक यू सर। तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। हेलो। यस
सर यहाँ डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उसका कोई लिस्ट मिल सकता है अभी? हाँ, वो तो मैं आपको है ना, आप डायरेक्टली चिराग भाई से या मेरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, राइट? ओके तो मैं आपको डायरेक्टली वो शेयर कर दूंगा, किसी जो भी मेरे पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है उनको असाइन करके डायरेक्टली आपको वो शेयर करवा दूंगा। वो अगेन वो इसके लिए अभी कॉमन नहीं है, क्योंकि वो कैसा होता है कि अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से, लाइक लेट से किसी की बिजनेस प्रोफाइल होगी तो बिजनेस प्रोफाइल में अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, किसी की सैलरीड प्रोफाइल है तो सैलरीड प्रोफाइल में अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स कॉमन नहीं रहते। सैलरीड ओके प्रोफाइल में हम सिर्फ फॉर्म 16 से ही काम चला लेते हैं, बिजनेस प्रोफाइल है तो हमें 2 इयर्स का, लास्ट 2 इयर्स का रिटर्न, उसका बिजनेस का प्रूफ, 6 महीने का बैंकिंग, करंट अकाउंट का बैंकिंग, वो थोड़ा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बढ़ जाता है उसमें, ओके बराबर? तो वो केस टू केस बेसिस पे हम लोग आप देख लेंगे हम लोग। ओके Guys, there is another one announcement is there. On 10th of December, we are going to hold another workshop, and that is IELTS Reading Mastery Workshop. So same time पे रहेगा, Friday 10th December 5 o'clock को है, और दूसरा एक 14th of December को है 5 PM sharp, and it will be Secret Behind Canada Student Visa. So 2 webinar pipeline में है, so most of you can register again for those webinars. एंड ये जो रिकॉर्डिंग भी है, ये आज का वेबिनार का, जो अगर किसी को चाहिए होता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। तो जिस नंबर से आपको कंफर्मेशन मैसेज आया था उसी नंबर पे आप रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, तो कल शाम तक या तो मैक्सिमम परसों तक आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। So if there is any more questions we are waiting for that, and we are eager to give answers. यस यस, पूछिए पूछिए, कोई भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस जितने पूछेंगे ना उतना आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा। जैसे मैंने आपको ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जो लोगों को मिथ्स रहती है एजुकेशन लोन के रिलेटेड, तो वो आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो चीज में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। So you can also type your question in chat box. So if you have any queries, you can also send through chat. So chat में भी आप आपके क्वेश्चन डाल सकते हैं। So I think most of you have solved your doubts, and most of you can you may know everything. Or if you have any queries, there are numbers on screen. You have number of Amit Bhai as well. यस So you can contact all of us for any of the doubts or any queries. And for document checklist and all, Amit Bhai and me can help you out. यस यस So Amit Bhai's team and my team both can यस help यस you to gain your education loan and your visa as well. So Amit Bhai, thank you very much for your precious time and guiding my students. And guys, thank you so much for your time, and you have spent almost 1.5 hours with us, and you have given a best time, best evening time as well. So thank you so much. Thank you so much for your presence, and see you in the next webinar. If you want to join us, you can again request us, and we'll send you an update. So Amit bhai, thank you very much, and guys, thank you so much. You are having all of our numbers, so you can directly contact us for any queries. थैंक यू चिराग भाई, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you everyone, and we are leaving for now. So bye bye. Have a wonderful evening and good night. Bye bye. थैंक यू।